Good morning, students. So, today we will start our chapter 12, that is about the sound. Okay, so in the everyday life, you have to hear a different types of the sounds, like the sound of the birds, sound of human beings, sound of bell in the temples, sound of different types of the machines, also like the sound of motorbike is different from the sound from the car, okay, or from any truck or buses. So what you think, how these all sounds are to be producing, and how they sound producing by that things are reached to us, ठीक है, in our ears, and from the ears that we hear the because here ear is also a sense organ, so that is a very sensitive to the hear. Okay, so in this chapter we will discuss how these sounds is to be produced, and how this sound reaches to our ears, and how we can able to hear the different type of these sounds at a one time. Okay, clear? So our first topic regarding this chapter, that is the production of the sound, means how sound is to be produced. So sound is produced only when one particle strike to the another particles. Okay, so when one particle strike to the another particle, so it will start vibrating. Okay, so due to the vibration, sound is produced. Okay, clear? Like in this diagram you will see that is a tuning fork. Okay, that is available in our lab, in the physics lab in our school. So this is a small metal uh, metal like u-shaped structure or y-shaped structure. Okay, so here is one ball is tie up to the string. Okay, so when ball is start moving from this position to this position, so it will strike to the strike to the tuning fork. So when any body strike to the tuning fork, then vibrations are to be produced, and these after vibration produced, we will able to hear the sound. Okay, so this is the sound produced in air, but sound can also be produced in water also, or in the liquid state. For example, in the second activity, so in this activity you will see we have a glass of water filled with the water up to the higher level. Now keep that tuning fork near the glass of water, and what will you see, the vibrations will start producing in the water also. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर अगर हम कोई स्टोन का पीस अंदर फेंकते हैं, तो उसके अंदर छोटी छोटी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है वाटर के सभी अराउंड, उसके सराउंडिंग में. ठीक है, तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, next we have propagation of sounds. Okay, so what do you mean by this propagation of this sound? This topic has been left when this tuning fork is dipped into the water. So when it is dipped into the water, then it also produce the vibration, and vibration will produce the sound. Okay, so the scratching, rubbing, blowing or shaking different objects, they always produce the different types of the sound. Okay, how this sound is propagate means move from one place to another place. ओके, जैसे एक पर्सन बाहर बैठा है, तो उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुंच रही है. ठीक है, तो जो साउंड है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस टाइप से मूव कर रही है, और वो मूव करते करते हमारे तक कैसे पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड्स. ओके, सो द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड द matter or the media or anything through which sound is to be travel, that is called as the media. ठीक है, like we have air media, liquid media, water media. Okay, solid thing media. So the different, we have three types of the matter: solid, liquid and gases. So all these three matters have a different speed of the sound. Okay, so the propagation of sound will depend upon the state of the matter. Okay, because sound move through the media from point of generation to the listener. So when object vibrate, it sets the particle of the media around it vibrating. ठीक है, अब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जैसे ये पार्टिकल है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके अराउंड जो भी पार्टिकल होंगे वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे.
ठीक है। तो जब वाइब्रेट स्टार्ट कर देंगे, सपोज कर लो यहाँ पे ये पर्सन बैठा है, ठीक है, और सॉरी हाँ, एक पर्सन इस साइड बैठा है, ठीक है। तो देखो पार्टिकल से साउंड गई, एक पार्टिकल वाइब्रेट स्टार्ट हुआ, उसने साथ वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कर दिया, इसने उसके साथ वाले को वाइब्रेट कर दिया, इसने अगेन एंड अगेन वो साउंड है वो प्रोपेगेट करती हुई, मूव करती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच हो जाती है। और जब दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है और तब हमें जो कोई भी साउंड है वो सुनाई देती है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है। सो ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, वो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस के थ्रू ही हो रहा है। ओके, सो द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम वन वाइब्रेटिंग बॉडी टू द अनदर वाइब्रेटिंग बॉडी थ्रू एनी मीडिया, दैट मीडिया कैन बी सॉलिड, लिक्विड और द गैस। ओके, नेक्स्ट डे कैन साउंड मेक ए लाइट स्पॉट डांस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, a beam of light from the light source is made to fall on the mirror। जैसे देखो ये वाला उसने क्या बना रखा है, ये वाला, सॉरी दिस वन। ओके, सो इसमें क्या, ही टेक अ फूड कैन, ओके, यू कैन टेक एनी सॉफ्ट ड्रिंक कैन ऑल्सो। सो द स्ट्रेच्ड बैलून, इसके ऊपर एक बैलून लगा दिया और सेंटर में इसके मिरर पीस रख दिया, ठीक है। अब उस मिरर से वो जो पर्सन है वो एयर ब्लो कर रहा है अपने माउथ से, ठीक है। एयर ब्लो करेगी तो नेचुरली क्या होगा, क्योंकि जो वो बैलून लगाया था वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, क्योंकि अंदर एयर जा रही है, ठीक है। जब एयर जाएगी तो वो एक्सपैंड करेगा, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई, तो देखो सबसे पहले सीधी गई वो लाइट, स्पीड ऑफ सॉरी साउंड स्पीड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से ऊपर क्या है हमारे पास, सोर्स ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ऊपर से हमें मिल रही है सोर्स ऑफ लाइट, इधर से जा रही है हमारी साउंड, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं इस पॉइंट पे आके, ठीक है, लाइक दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके जब दोनों चीज़ें आके स्ट्राइक करेंगी तो इस टाइप से हमारी वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होगी। और वॉल के ऊपर हमें जो, जैसे वो बैलून के ऊपर हमने मिरर लगा रखा था, तो वो मिरर का रिफ्लेक्शन सामने पड़ेगा। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो मिरर के ऊपर पड़ी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारी वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। और जब वो वॉल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी वो वाला रिफ्लेक्शन, तब हमें ऐसे लगेगा कि वो कोई डांसिंग स्पॉट है, जैसे जो लाइट है वो डांस कर रही है, मतलब थोड़ा वो हिलना स्टार्ट कर देगी वो लाइट उस पॉइंट पे आके इस वॉल के ऊपर, ठीक है। सो दिस विल शोज दैट साउंड कैन मेक ऑल्सो ए लाइट स्पॉट डांस। ओके, क्लियर। Next we have a sound needs a media to travel. Okay, for example, sound media needs a media to travel, ठीक है। मीन्स हाउ दिस साउंड नीड मीडिया, जैसे हमने ये तो बोल दिया कि वो मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मीडिया के अंदर भी ऐसी क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव। ओके, so wave is a disturbance that moves through the media when particle of the medium set neighboring particle into the motion। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव कर रहा होता है तब क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी इस टाइप से वाइब्रेशन और वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो वेव को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू अ मीडिया फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ मीडिया टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। ओके, so this is called as a waves. Now these waves can be of different areas, or the two main areas of the waves, like the upper wave area and the lower wave area. Okay, for example we have the tuning fork. When tuning fork start vibrating, so some of the vibrations are like this, means they are very densely, मतलब उसमें जो पार्टिकल है वो डेंसली एक दूसरे के साथ पैकअप होंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट पे आप देखोगे कि जो पार्टिकल है वो लेस डेंसली पैक है, मतलब वहाँ पे जो पार्टिकल है उनकी जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। फिर आगे जाके फिर इनकी जो डेंसिटी है वाइब्रेट करने की वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तब वो पार्टिकल इस टाइप से वहाँ पे स्ट्राइक करने लगे,
ठीक है। तो ये वाला जो हमने एरिया ड्रॉ किया है, हाई डेंसर मीडिया, ये वाला एरिया और दी मीडिया, ठीक है, इस एरिया को तो हम बोलते हैं कंप्रेशन एरिया। ओके। और जहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन मीडिया, रेयरफेक्शन एरिया, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ एरिया आर टू प्रोड्यूस इन द वेव, कंप्रेशन एंड द रेयरफेक्शन। कंप्रेशन इज़ अ हायर डेंसर मीडिया एंड रेयरफेक्शन इज़ अ लेस डेंसर मीडिया। ओके, तो इसकी डिटेल हम फर्दर फिर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड्स नीड अ मीडिया टू ट्रैवल। इसमें यहाँ ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे इसमें देखो क्या किया उन्होंने, टेक अ बेल जार, ठीक है, बेल जार के अंदर हमने लगा दी एक इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, ये वाली इसके अंदर बेल लगाई हुई है और इसको अच्छे से कवर किया हुआ है कॉर्क के साथ, ठीक है, और ऊपर से इसको कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक कनेक्शन के थ्रू, मतलब जहाँ से हमने उसका स्विच ऑन ऑफ करना है बैटरी चलाने का, बेल चलाने का, ठीक है। और नीचे उन्होंने एक पाइप लगाई हुई है वैक्यूम के लिए, मतलब वैक्यूम क्या है, उसमें से जो थोड़ी बहुत भी एयर बचती है वो सारी की सारी हमने उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो पहले जब हमने कोई वैक्यूम पंप ऑन नहीं किया, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या किया कि इस वैक्यूम के थ्रू एयर को बाहर निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे थोड़ी सी अमाउंट में एयर बाहर आई तो उसकी जो आवाज़ थी बेल की वो थोड़ी कम सुनाई देने लगी, ठीक है। फिर वैक्यूम के थ्रू और एयर को बाहर निकाला तो वैसे ही उसकी जो साउंड थी वो और कम आनी स्टार्ट होगी। और जब पूरी एयर वैक्यूम के थ्रू बाहर आ जाएगी तो क्या होगा कि सारी की जो आवाज़ थी बेल की वो हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब बेल जार के अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडिया प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और वैक्यूम में हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। जैसे स्पेस में जो लोग जाते हैं तो उनको खुद की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडिया नहीं है जो साउंड को ट्रैवल कर सके, प्रोपेगेट कर सके, पार्टिकल को वाइब्रेट कर सके और साउंड प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडिया की ज़रूरत ज़रूर होती है, और वो मीडिया दैट कैन बी सॉलिड, दैट कैन बी लिक्विड और कैन बी गैसेस। ओके, क्लियर? So our next topic is sound waves types. So sound waves can be of two types, longitudinal waves and the transverse waves. Okay, so what are the difference between this transverse and the longitudinal waves? So first we have longitudinal waves that have a back and forth motion. Okay, back and forth motion like example of spring, जैसे इस डायग्राम के अंदर भी शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इस टाइप का जो वेव होती है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल भी उसी साइड में मूव कर रहे हैं और जो वेव्स है वो भी उसी साइड में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, द वेव्स विच बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज equal to the or same to the direction of the wave, so this is called as the longitudinal waves. सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमने सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कंप्रेशन एरिया होता है और रेयरफेक्शन एरिया होता है, जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ है। सो देखो, जब उसको स्ट्रेस करेंगे तो कई बारी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, कई बारी लेस, किसी पॉइंट पे लेस स्ट्रेस होगा। तो जहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रेस हो गया वो तो उसका रेयरफेक्शन एरिया है, और जहाँ पे वो लेस स्ट्रेस हुआ है तो उसकी जो स्प्रिंग है वो इस टाइप से साथ साथ में उसकी कॉइल्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन एरिया, ठीक है। तो ये होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जैसे जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है, ये इस टाइप से अपनी प्रोपेगेट करती हैं पार्टिकल्स को, ठीक है। दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, देखो, सो जैसे देखो जिसमें जो पार्टिकल है वो इस टाइप से मूव करता है, अप एंड डाउन, ठीक है, जैसे ये देखो। और जब ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि वाटर के अंदर अगर हम कोई स्टोन डालेंगे तो उसके जो साउंड और वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव्स में हम देखेंगे कि पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा था लेकिन वेव उसके परपेंडिकुलरली बननी स्टार्ट हो जाती है। सो ये परपेंडिकुलर पॉइंट आ गया, उसमें हमने बोला था सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसमें वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेंगे,
ठीक है। सिमिलरली जैसे वहाँ पे हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एरिया पढ़ा था, वेव्स के अंदर होते हैं हमारे पास, जैसे देखो एक होता है अपर एरिया, एक होता है लोअर एरिया। तो अपर एरिया को तो हम बोलते हैं क्रस्ट एरिया और लोअर एरिया को बोलते हैं हम ट्रफ एरिया, मतलब ये वाला पॉइंट। सो ये क्रस्ट है, ये हमारा ट्रफ है। अपर एरिया इज़ कॉल्ड क्रस्ट और लोअर वेव इज़ टू बी कॉल्ड एज अ ट्रफ। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वेव्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन वाटर, सो दिस इज़ a टाइप ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। Clear the difference between both types of the waves? Yes. Next है characteristic of the sound, means what are the main characteristics of the sound that we produced in the waves? Okay, so first point is frequency. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, suppose this is a wave. Okay, so what is frequency? So the total number of waves produced in 1 second. Okay, so one wave is produced starting from this and end up to this point. Start from this and end up to this. So this is one wave. Similarly, start from this, end from this, this is a second wave. ठीक है। third, this, so this is a third wave. ओके, सो द नंबर ऑफ वेव्स, जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक सेकंड के अंदर, एक ही सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड हों वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। दैट इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट साउंड इज़ ऑलवेज हैव ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? सो द अमाउंट नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 second. Okay, clear? Second we have amplitude. So what is amplitude? So it is simply a height of a crust or depth of a trough. Like this is the height of a crust starting from this, and depth of a trough, depth of trough like this, means height of the crust or the depth of the trough, that is called as the amplitude. That is a second characteristic. So each wave also have a different type of amplitude, because some waves have higher amplitude, some has, जैसे ECG आप देखते हो तो ECG में इस टाइप से लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो कुछ की एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा मिलेगा, कुछ का कम मिलेगा, कुछ का बिल्कुल ही कम मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी जो साउंड का मीडिया वो डिपेंड करता है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, क्लियर? थर्ड वी हैव स्पीड. स्पीड इज़ अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब किसी वेव ने कितने डिस्टेंस में कितने टाइम के अंदर वो डिस्टेंस को कवर किया है, वो उसकी स्पीड है। सो स्पीड को हम किस टाइप से मेजर करते हैं? सेम फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के अंदर, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन. ये मैंने आपको बताई दी. डेंसिटी जहाँ पे जाता है वो कंप्रेशन एरिया होता है और दूसरे वाला रेयरफेक्शन एरिया होता है, ये वाला और ये वाला. ठीक है, सिमिलरली इस डायग्राम में शो किया हुआ है स्पीकर की साउंड को, और इस थर्ड डायग्राम में ट्रांसवर्स वेव को शो किया हुआ है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में. ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव वेव्स फॉर अ शॉर्ट पिच एंड वेव फॉर द हाई पिच. सो देखो, जो शॉर्ट पिच होती है उसकी वेव आपको इस टाइप से मिलेगी. ठीक है, और हायर पिच की जो वेव्स है वो हमें रेगुलर मिलेगी. ठीक है, मतलब वो पास पास मिलेंगी और वो थोड़े डिस्टेंस पे हमें मिलती है. ठीक है, वैसे ही सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड में डिफरेंस होता है. जो सॉफ्ट साउंड होती है उसमें जो वेव है वो इस टाइप से प्रोड्यूस होती है, मतलब वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना वेव का, आप देख रहे हो वो कम है. ठीक है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो साउंड है वो लाउडर होना स्टार्ट हो कर देती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड पूछ सकते हैं, सॉफ्ट साउंड और लाउडर साउंड में डिफरेंस. सो नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिक रिलेटेड टू दिस स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो वाला फार्मूला लगा के हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, एक करेक्टरिस्टिक का पॉइंट आपकी बुक में गिवन नहीं है, दैट इज़ अबाउट द वेव लेंथ. वेव लेंथ क्या होती है? जैसे ये देखो, दैट इज़ अ वेव. ठीक है, सो दैट इज़ क्रस्ट, दैट इज़ क्रस्ट. सो द डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट,
ओके, और बिटवीन टू ट्रफ, दो क्रेस्ट के डिफरेंस या फिर दो ट्रफ का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, हमारे पास जो सिंबल यूज़ करता है दैट इज़ अ लैम्बडा। ठीक है, जैसे हम ऑपोजिट आई वाई डालोगे तो वो लैम्बडा का सिंबल बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज़ द फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड ऑफ द वेव। ओके, क्लियर? So next we have speed of sound in a different media. So the speed of sound in different media that we will discuss in our next video. Okay, so thank you so much.